we are focusing on English language, right? So there is a thing कि हमें बोलना नहीं आता. There are three things. First is मैं बिल्कुल zero level पे हूँ. I don't know कि how to speak. मुझे पता ही नहीं है. Whenever I'm all right. Sony, is it audible? All right, all right. Please let me know if there is some issue like that. All right. Hi there. How are you? All right. Whenever we are going to start about English, अब हम speaking पे focus करते हैं ना. So there is a thing which comes in our mind that is called speech. Whenever we are going to focus, whenever we are going to speak, हमें हमेशा speech के ऊपर focus करना होता है. Now the question arises, what is speech? हम क्यों बात कर रहे हैं speech की? इंग्लिश में बोलना ही, जो हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं, that is speech. और अगर आपको स्पीच, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको बोलना आ गया ना, then everything will be very easy for you. Now the thing is, अगर मुझे स्पीच का फॉर्मेट पता चलता है, मुझे पता चलता है कि मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बात करूं. ओह, बीच में हम डिस्टर्ब हो गए. आई एम सो सॉरी. हम लोग उस चीज पे बात कर रहे थे कि देयर आर 3 पैरामीटर्स कि हम किस कैटेगरी में आते हैं. फर्स्ट कि वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. हमें बिल्कुल भी नहीं आता है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. सेकेंड थिंग इज we know how to speak but हमें words नहीं मिलते हैं. our vocabulary is very weak. Third is I know how to speak. I know what are the vocabulary, what is the vocab, how is the word going on, everything I know. But the thing is कि मुझे नहीं पता, confidence नहीं आता. I don't have that confidence. Whenever there is someone who is very good in English and he communicates with me, I don't have that confidence. मेरे बिल्कुल guts down हो जाते हैं. मुझे English बोली ही नहीं जाती है. हम इन 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं. ऑलराइट. तो इन 3 कैटेगरीज के अंदर आने के लिए ना, मुझे आप सबको ना चैट बॉक्स में बताना होगा कि आप इन तीनों में से कौन से पैरामीटर में लाई करते हैं. वेदर यू आर जस्ट वेरी जीरो, मेरे को बिल्कुल नहीं आता, आई वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस, आई नो इंग्लिश बट मेरी वोकैब बहुत वीक है, एंड द थर्ड वन इज कि मुझे आती है बट आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस. ऑलराइट. इसके लिए यू हैव टू पिंग मी इन द चैट बॉक्स. ऑलराइट. Now, in this demo class, what we are going to do is, we are going to focus on very basic thing that is called noun. Because noun is the building block of any language. अगर मुझे noun के बारे में पता चला ना, तो मैं सारी language को बहुत clearly focus करूंगी. अच्छा, you wonder one thing ना, right? You all know one thing. जब भी घर बनता है, right? तो हम एक ईंट रखते हैं, एक नींव रखी जाती है, right? So that ईंट is the building block of that house, right? Similarly, whenever we are going to learn a language or we are going to learn a new thing, we have to place a building block for that thing. And that building block is noun. So in today's class, we are going to learn about noun. Alright? So, I'm going to share my screen with all of you and please let me know if my screen is visible to you all or not. Alright? Good. Is it visible to you all? Okay, very fine. Alright, folks, we are going to focus on today's class is about noun. Have you heard about this word noun prior? क्या हमने पहले noun के बारे में कभी सुना है? What is noun? Okay, just tell me what is noun. Very good, perfect. Very good, Sony. Very perfect answer. Exactly. Nouns are the words that represent people, place, things, or ideas. Now you think. Yes? Very good, Shona. It's a place, person, thing, or animal. Very good. Nouns को हम naming words भी कहते हैं. Now, what are naming words? Like सोनी का अपना नाम है, that is सोनी. मेरा अपना नाम है, that is निधि. यहाँ पर प्रियंका है, प्रियंका का अपना नाम है. यानी कि these are naming words. एक टेबल है. टेबल को मैं ये तो नहीं कहती लकड़ी का एक टुकड़ा रखा है. We used to call it table.
दैट मीन्स जो भी चीजें हमारे आसपास हैं हमने उन्हें एक नाम दिया है एंड ये नाम कहलाता है नाउन. नाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट people, place, things or ideas. Now we have a clear idea. People कौन होता है, person कौन होता है, place क्या होती है and thing क्या होती है, right? लेकिन ideas को हम कैसे noun कह सकते हैं, right? A question may arise कि एक idea को हम कैसे noun कर सकते हैं. तो एक बहुत basic सा simple सा हम example लेके चलते हैं. We have knowledge, right? We have knowledge of many things, but can we touch that knowledge? Can we see that knowledge? Or can we hold that knowledge? Yes or no? No? Right, perfect. हम नहीं कर सकते. So these are the abstract things. Abstract things का क्या मतलब होता है? जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, hold नहीं कर सकते. ऐसे ideas को भी हम noun कहते हैं. These are also called noun. For example, your knowledge, your laughter, your anger, these are also the ideas. तो इन्हें हम noun ही. कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाउन की बात करें, फॉर अ पर्सन में कोई भी आ सकता है. योर टीचर, योर ड्राइवर, योर मदर, योर नेम, एनीथिंग कम्स अंडर अ पर्सन वाले पार्ट में. ऑलराइट. एनिमल, एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स हैं, वेदर इट्स एनिमल्स या is it audible to you now? Okay. Now the things. Things क्या कहती हैं? Things कहती हैं many things. मतलब मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं all comes under things. Umbrella. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है अम्ब्रेला का. उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आप अगर देखना चाहो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अलावा यू हैव चेयर, यू हैव बैग, आई हैव वॉच, आई हैव स्पेक्स, आई हैव हेडफोन. आप कितने भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो. दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर थिंग्स. ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे थिंग्स में आते हैं. नाउ आइडियाज. आइडियाज की अगर हम बात करते हैं तो आइडियाज आर वेरी सिंपल. योर लाफ्टर, योर नॉलेज, योर एंगर, your expressions, these all things are comes under ideas. Alright? तो हम इन चार चीजों को noun की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं. person, place, thing and idea. आप एनिमल्स को भी ला सकते हो. दैट इज ऑल्सो नाउन. ठीक है, ये जितनी भी चीजें आती हैं, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, मुंबई, निधि, वरुण, सोनी, गीता, बहुत सारे लोग हैं, नेहा, पूनम, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर. ठीक है, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं. ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड नाउन. गॉट इट एवरीवन? गुड, परफेक्ट. ना हम नाउन को यूज कहाँ कहाँ करते हैं? हमारी एवरीडे कम्युनिकेशन में ना नाउन हर जगह यूज होता है. एक्चुअली नाउन सर्व्स अ वेरी वेरी beautiful purpose in our daily communication. If you understand ki what is noun now, being a learner, it is very easy for you to learn English language. All right. अच्छा, tell me one thing. आपके घर पे अगर टेबल है तो what do you call it? टेबल ही कहते हो या कुछ और कहते हो? Tell me. अगर घर पे टेबल रखा है तो what do you use to call it? You call it table or something else? Table ना, and table is an English word, right? तो whenever there is a table word कभी भी आए दिमाग में, सामने टेबल हो, तो let's pledge कि हम कभी भी टेबल को कुछ और नहीं बोलेंगे. आज से सिर्फ हम एक इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे and that is called table. Good, perfect. चेयर है मेरे घर में, मैं कभी आज के बाद चेयर को कुर्सी नहीं बोलूंगी. I'm not going to say कुर्सी to it. I used to call it chair. Please give me the chair. Please pass the chair. I am going to sit on the chair. Alright? यानी कि अभी हमने दो वर्ड्स पे फोकस किया. मेरे घर पे टेबल भी है, मेरे घर पे चेयर भी है. So I am going to use table and chair. I am not going to use कुर्सी दे दो भाई, मेज घिसका दो. नहीं. आज के बाद जब भी मैं बात करूंगी तो मैं टेबल एंड चेयर ही यूज करूंगी. कलम दे दो. No. I used to call it pen.
प्लीज पास द पेन, पेन दे दो, ठीक है। खाना खाना है मम्मा, प्लीज फूड दे दो। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट अगर मैं इन चीजों को प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी अपनी डे टू डे लाइफ में, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू लर्न इंग्लिश एंड टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी। लेट्स डिसाइड कि आज से हम कौन से 5 वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे ही नहीं, चाहे वो कभी भी आए। 2 वर्ड्स मैंने बताए, टेबल एंड चेयर। नाउ 3 वर्ड्स यू हैव टू टेल मी कि वो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। टेबल, सेकेंड इज चेयर, थर्ड वन इज कौन बताएगा? Who is going to tell me the third word? Dhairya, you want to tell me? Please tell me, Dhairya, which words we are going to speak in English forever in my life. हमेशा के लिए मैं इस वर्ड को अब हिंदी में कभी नहीं बोलूंगा। कौन सा वर्ड यूज करोगे बेटा आप? बैग, वेरी गुड। वाटर, एग्जैक्टली। पानी, एग्जैक्टली, वी कैन कॉल इट पानी। हमेशा मम्मा पानी देना, पानी पास करना, पानी दे दो प्लीज। नहीं, आज के बाद हम पानी नहीं सिर्फ वाटर बोलेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास अभी 4 वर्ड्स हुए, टेबल, चेयर, बैग, वाटर। नाउ द फिफ्थ वर्ड, कौन बताएगा? हु इज गोना टेल मी द फिफ्थ वर्ड? मिल्क। वाओ, इट्स वेरी गुड। आज के बाद मैं कभी दूध नहीं बोलूंगी, मेरे को एक ग्लास दूध पकड़ा दो। नो नो, I'll always say please give me 1 glass of milk, है ना? मतलब पूरा भी नहीं बोलो, दूध भी बोलना है तो just say please give me milk, या मम्मा मिल्क दे दो, है ना? या फिर मैं मिल्क लेने जा रही हूँ। अब मुझे पता चला I have 5 words, milk, bag, water, table and chair. ये 5 words, I will not go to use these words in Hindi in my life now. All right? We are going to speak these 5 words in English forever. This is the best way to learn English or to speak English with fluency. जो words मुझे पता है, मैं उन words को लाइफ टाइम अब इंग्लिश में ही बोलूंगी। All right? Let's continue. Now, अब हमारे पास आता है कि हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं नाउन को। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, नाउन हमेशा यूज होता है नेम कॉलिंग में। आपको किसी को बुलाना है, आप ऐसे तो नहीं बुलाते, ओए कम है, ओए गो देयर। कैन वी यूज दैट? कितना ऑकवर्ड लगेगा ना। वी हैव नेम्स, हम लोगों को नाम से बुलाते हैं। संतोष प्लीज कम है, मयंक प्लीज गो देयर, धैर्य सिट डाउन, राइट? तो दीज आर द थिंग्स। जब आप किसी को आप डेली बेसिस पे नाउन का यूज कर रहे हो, you are using noun on daily basis. In every or in each sentence you are using noun. Naming people, you got that idea? लोगों को नाम से बुलाना, ठीक है? मम्मा प्लीज कम है, मम्मा भी इज ऑल्सो नाउन ना। मम्मा को भी अब मम्मा के नाम से नहीं बुलाएंगे हम, मम्मा भी इज अ पर्सन, तो दैट इज ऑल्सो नाउन, ठीक है? आइडेंटिफाइंग प्लेसेस, अब प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली प्लीज आइडेंटिफाई की। आई लिव इन हरियाणा, आई गो टू मुंबई फॉर अ मीटिंग, और व्हाटएवर द थिंग, ठीक है? जहां पर भी प्लेसेस आती हैं, जगह के नाम आते हैं, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, wherever, whatever these words we are using, these are used to identify a place. सेकेंड हमने कहा नाउन यूज किया? प्लेसेस के अंदर। थर्ड वन इज थिंग्स। नाउ थिंग्स जब हमारे पास आती हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बैग, बॉटल, फोन, स्पेक्स, चेयर, टेबल, these all are the things. इन सारी चीजों को पहचानने के लिए, इन सारी चीजों को बताने के लिए और बोलने के लिए we are using nouns. And the third, last one is, fourth one is expressing ideas. I am very angry. मैं बहुत गुस्से में हूँ। Anger क्या है? It's an idea. Alright? So this is also a noun. I am very happy. It's an idea, right? We can't touch a happy thing, right? मैं बहुत happy हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरी एक feeling है. It's an abstract thing. You can't hold it, you can't touch it, ठीक है? But you can feel it. मेरे expression से आपको पता चल जाएगा, मेरी बातों से आपको पता चल जाएगा. Then I'm very happy. So this is expressing your ideas. This is also noun. All right? Is it clear to you all? यहाँ तक clear है सबको?
Please give me response. All right, good. Now the next thing is types of noun. कौन कौन से types of noun होते हैं जो बहुत ही important होते हैं? All right, बहुत सिंपल सी चीज है. We have 8 types of noun. हमारे पास 8 तरह के noun होते हैं जिन्हें हम अपनी day to day life में use करते हैं. ठीक है? My screen is visible to you all, right? सबको दिख रही है मेरी screen? Is it visible? Good. तो कौन है जो टाइप्स ऑफ नाउन मुझे पढ़ के बताएगा कि जो मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज टेल मी कौन कौन से नाउन्स हैं जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल है. फर्स्ट वन इज, या प्लीज प्लीज. वेरी गुड. परफेक्ट. गुड. Right. Very good. Perfect. Very good. Very good, beta. These are the types of noun. Now in this session, we are going to study about countable noun and uncountable noun. अभी आप कहोगे कि मैम आपने ना सबसे पहला टॉपिक जो बताया था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बताया था, बट यू डायरेक्टली स्विच ऑन टू काउंटेबल नाउन. यस, मैं डायरेक्टली स्विच ऑन हो गई काउंटेबल नाउन पे. ठीक है, क्योंकि ये चीज ना समझेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसे करने में. ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो और मेजर कर सकते हो. ठीक है, नाउ काउंट एंड मेजर कैसे कर सकते हैं हम? लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव अ डॉग. मेरे पास एक डॉगी है, अ डॉग. काउंट कर सकती हूँ, ए आ रहा है भाई, एक ही डॉगी है मेरे पास. आई हैव 3 डॉग्स, यानी कि डॉग तो एक था, अब 3 डॉग्स हो गए हैं. इन्हें भी मैं काउंट कर सकती हूँ. वो चीजें जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, दीज आर योर काउंटेबल नाउन. गॉट इट? यानी कि एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ जो लाइफ टाइम याद रखोगे. दैट इज, जिन भी चीजों का आप प्लूरल बना सकते हो. प्लूरल मीन्स एक सिंगल चीज जिसके आगे आप एस या ईएस लगा सकते हो, उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैग. एक सिंगल बैग है, बट मैं बैग का बैग्स बना सकती हूँ. यस और नो? कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? टेल मी, क्या मैं बैग का बैग्स बना सकती हूँ? टेल मी. बैग को मैं बैग्स बोल सकती हूँ. यस, वेरी गुड. मैं उनको प्लूरल फॉर्मेशन कर सकती हूँ. क्या मैं वाटर का प्लूरल फॉर्मेशन कर सकती हूँ? क्या मैं वाटर्स बोल सकती हूँ? नो. एग्जैक्टली. दैट मीन्स जिन भी चीजों का हम काउंटेबल, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं या जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं. प्लूरल इन द सेंस, या तो मैं उनके पीछे एस या उनके पीछे ईएस लगा सकती हूँ. दैट इज योर काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, वॉच. वॉच का प्लूरल क्या बन सकता है? वॉच का प्लूरल क्या बनेगा? वॉचेस. एग्जैक्टली, वॉचेस. दैट मीन्स अगर किसी भी सिंगल चीज का हम प्लूरल बना सकते हैं, हम उसे काउंटेबल नाउन रखेंगे. ऑलराइट, अब देखते हैं कौन जल्दी जल्दी आंसर देगा. पेन. वेरी गुड. एनिमल. एनिमल, वेरी गुड. पर्सन. नो, यू आर रॉन्ग है. पर्सन्स इज नॉट द वर्ड. पर्सन्स का बेटा पीपल होता है. नहीं, पर्सन, एग्जैक्टली, पर्सन को हम पीपल डिनोट करते हैं एंड पीपल इज अ प्लूरल वर्ड. ओके. बैग. बैग बैग बैग. टेबल. टेबल. बॉटल. बॉटल्स, वेरी गुड. स्केल. स्पेक्स. स्पेक्स का, I am not saying face, I am saying spectacles. Headphone. Fingers. Fingers.
परफेक्ट, वेरी गुड। यानी कि जिन भी चीजों का आप प्लूरल बना सकते हो ना, दोज ऑल थिंग्स आर योर काउंटेबल नाउन। गॉट इट? समझ आया सबको? गुड, वेरी गुड। नाउ अब हम आ जाते हैं व्हाट इज, alright, just give me a second, countable noun। alright, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। Tom brought 10 packets of Lays for a trip। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन क्या हुआ? 10 पैकेट्स। एग्जैक्टली, क्योंकि 10 पैकेट है, मैं गिन सकती हूँ भाई। Mom asked me to buy a dozen bananas। डजन में कितने नंबर्स आते हैं, कितनी फिगर्स आती हैं एक डजन में? हाँ जी, 12। वेरी गुड। एक डजन में 12 चीजें, 12 आइटम्स चढ़ते हैं। दैट मीन्स मम्मा ने मुझे 12 केले लाने के लिए कहा एंड मैं ले आई। दैट मीन्स 12 हम काउंट कर सकते हैं। आई सॉ एन एरोप्लेन। एन एरोप्लेन, पता चल गया ना, एक ही एरोप्लेन देखा है ना, एन लगाया है ना? तो दिस इज काउंटेबल। ऑलराइट, आई होप सबको क्लियर है काउंटेबल नाउन क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं, कोई बताएगा मुझे अनकाउंटेबल नाउन क्या बनेगा? अंगूर अनकाउंटेबल है क्योंकि एक बंच में आता है। इज इट सर्वेश? हाँ, गुड 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 सर्वेश। हाँ, लीची? नहीं, लीची को मैं काउंट कर लूंगी। कौन बोला लीची भाई? ऑलराइट, अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर मैं करूं तो दैट, सॉरी क्या स्टार्स आ सकते हैं? गुड, वेरी गुड। हाँ, हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। स्काई, वेरी गुड। स्काई हैज नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ जी, हेयर, सैंड, वाटर, वेरी गुड वेरी गुड। डीजल, पेट्रोल, मिल्क, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एग्जैक्टली, हेयर बाल। नाउ गिव अ पॉज, है ना? अनकाउंटेबल नाउन हमारे वो नाउन्स होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो और जिनका प्लूरल नहीं बन सकता। एक ट्रिक है, हाँ जी, स्टार हो सकता है, स्टार हो सकता है, क्योंकि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ना, जो भी चीज, जैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो ऐसी चीजें जो ग्रेन्स की फॉर्म में है, यानी दानों की फॉर्म में है, लिक्विड वाली फॉर्म में है, these all things comes under uncountable noun। अब ग्रेन की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट 1 kg ऑफ दाल, पल्सेस, कोई सी भी पल्सेस खरीदी मैंने और 1 kg खरीदी है, तो क्या मैं उस 1 kg में से दाल के दाने गिन सकती हूँ? कैन आई काउंट दैट थिंग? नो, वेरी, हाँ, ओके ओके, ठीक है, हाँ, मैं काउंट नहीं कर सकती। बट आप कहोगे उसके आगे 1 kg तो लिखा हुआ है, तो वो तो काउंटेबल में आना चाहिए ना। 1 kg जो है ना, 1 kg का बैग मैंने, एग्जैक्टली, जिस चीज में यूनिट होती है वो चीज कभी काउंट नहीं होती है। 1 kg ऑफ अरहर दाल या तूर दाल बैग मैंने खरीदा, तो वो जो बैग का साइज, आप क्वांटिटी मैटर कर रहे हो ना, आप ग्रेन को नहीं काउंट कर सकते। ऑलराइट, तो दैट ग्रेन वाला पर्पस इज ऑलवेज, या फिर लिक्विड वाली फॉर्म में, आई हैव अ बॉटल ऑफ मिल्क, एक बॉटल है मिल्क की, बट मिल्क को मैं कभी भी काउंटेबल फॉर्म में नहीं लेकर आ सकती। So the things which are in the form of expressions, the things which are in the form of liquid, the things which are in the form of grains, ठीक है, इन सारी चीजों को आप कभी भी काउंटेबल नाउन के अंदर काउंट नहीं करोगे। These all are uncountable noun। Got it? यहां तक समझ आया सबको? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस समझ आया? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सबको समझ आया? इज इट क्लियर? गुड, वेरी गुड, perfect perfect। So folks, this is our demo session, and in this demo session I have just given you an brief introduction about how I'm going to take this session, how my pattern will be there, and चीजें कैसे जाएंगी हमारी क्लास के अंदर। So these are the things that I'm going to take these sessions on। Give a pause, बेटा, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। अभी जब मामा कुछ बोले तो
थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ऑलराइट। सो दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर हमने अभी बात की, ठीक है। आपने क्या बात की, मतलब हमने क्या देखा कि किस तरह से मेरा पैटर्न जाएगा, किस तरह से मैं बात करूंगी, किस तरह से मेरे सेशंस आप लोग करोगे, कवर होंगे, ओके। तो यही चीजें हैं जो हम अपने सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। बेसिक नाउन से रहेगा, देन वी आर गोइंग टू कवर अबाउट आर्टिकल्स, वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, ग्रामर के बारे में बात करेंगे, देन हम वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें रहेंगी जो हमारे सेशन के अंदर रहेंगी, एंड फॉर्मेट विल बी द सेम, ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है। आपको गूगल लिंक शेयर किया जाएगा, यू हैव टू ज्वाइन दैट गूगल लिंक, and if you have any query regarding these classes, anything, okay, पीयूष ने हाथ खड़ा किया, yes पीयूष प्लीज।